Hello and welcome to The Appointment. I am Pranjal Sharma. Joining me today for a conversation is Mr. A.M. Nayak, who is the Group Executive Chairman of Larsen & Toubro L&T. Mr. Nayak, thank you very much for being with me today. I know that we are discussing the IPO of a company which is very close to your heart. I would like to begin by asking you about the origins and the genesis of L&T Infotech. You know, I used to watch in late 80s and early 90s why L&T has such a high attrition rate, the L&T as a group. Because talent is really the winning, the only way you can win the business. Competition is always on talent. People who have a great talent, they will win. People who have mediocre talent will lose. And to that extent, I am paranoid about making sure that we have a best leadership, the best technological excellence and so on. And therefore, it worried me no end when this was happening. But at the same time, I was running heavy industry and project business and so on. And then I took over in April 28 as a CEO and MD of the company. I wanted to transform the company. L&T has been a great company all these years. Decades, in fact. Great brand value. Does things that many people can't do. In fact, very few can. But I used to watch why is L&T not able to convert this excellence into a value creation for all stakeholders. Because in L&T, everybody was very happy being called great professionals. And I wanted them to be called great entrepreneurial professionals. So when I took over, I launched a first 5-year plan in the history of then 65 years or 64 years, which was a transformational first 5-year plan called Project Blue Chip. We hired BCG, got on with it right on the first 30 days. I wanted to achieve certain things in 90 days. I wrote it down. One of them was launching the 5-year strategic plan, which has to be executed with entire enthusiasm, but with a differentiation of anything that you do, what is the value in it. It doesn't mean that you give your technological emphasis, but while you are doing something very innovative, creative, why are you not also keeping in mind that it must bring return? It must create value. And that was the genesis of my entire transformation. And I used to tell our employees that people who are very good professionals will maintain the company. Slowly may inch up. People who are great leaders will add the value. And the people who are entrepreneurial, great leader with professional background will multiply value. But do you see this specific in the technology sector in L&T Infotech? Do you see that? This is valid for any business. It is a leadership that must speak of creating value all round by all the top managers. So, the blueprint for the strategic plan was ready by December 99. February, it was approved by the board, February 2000. I went on to various L&T locations to sell my ideas of transformation as to what is new in it. And if you see our new vision that came out in November 99 is a completely new orientation to what we should be looking for. Concern for the employees, yes. Creating a super brand, yes. But becoming global and international was a new emphasis. And Infotech fell into that very much. Because 97% of what we do is Infotech, IT. Then value creation. That was one of the main driver for that entire strategic plan. August 2000, when I finished my round for convincing, or rather trying to convince people that the transformation doesn't mean losing jobs. Transformation meaning creating value at the same time growing faster. So there came a time in August when I had been wondering from July to August as I have been traveling, and 800 more people left right in front of my eyes during my own period, and that is only to IT industry. Because we have 82 domains, and everyone wants domain experts. They are called functional experts. True. You can get the IT professionals
But then only IT professional doesn't deliver. The people who drive the business are the people who know the industry. And those are the ones who are most wanted. And if they keep being lost at the rate of something like 60, 70 or 2 a day, let's say, I mean, the L&T group business is in danger, not just IT. टेक्नोलॉजी का सूरत दुनिया भर में बदल रही है। L&T इन्फोटेक ने काफ़ी सालों से अच्छा काम किया है, लेकिन अब जो नए मुद्दे सामने आ रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोगों का मानना है कि जो आज की टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं उनकी आवश्यकता आगे नहीं होगी, एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी कंपनी की शुरुआत की आवश्यकता है। आपका इसमें क्या विचार है? L&T इन्फोटेक को आप किस तरह से बदलना चाहते हैं जिससे अगले 5 और 10 साल में वो फिर भी एक बाज़ार के लिए ज़रूरी साबित हो? मैंने आपको अभी बोला हमारा फर्स्ट स्ट्रेटजिक प्लान किस तरह था, टू क्रिएट वैल्यू, ट्रांसफॉर्मिंग द कंपनी। हमारा सेकंड स्ट्रेटजिक प्लान एंड थर्ड भी चले गए, ये फोर्थ स्ट्रेटजिक प्लान है 16 to 21 तक का। वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्ट्रेटजिक प्लान है, वो लॉन्च हो रहा है 12 तारीख को। एंड 13th आधा दिन हम खाली ये जो आपने क्वेश्चन रेज किया कि इन्फोटेक का क्या फ्यूचर होगा, मैं तो ये बोल रहा हूँ आपका L&T ग्रुप का क्या फ्यूचर होगा। तो हम जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जिसके ऊपर सोच रहे हैं, वो पूरा L&T के लिए सोच रहे हैं। 3 साल पहले हमने स्मार्ट वर्ल्ड डिपार्टमेंट क्रिएट किया था L&T के अंदर। L&T एक ही कंपनी है जिधर फिजिकल एंड डिजिटल दोनों कैपेबिलिटी मिली हुई है। हम आखा सिटी क्रिएट कर सकते हैं, बिल्डिंग क्रिएट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं, फिजिकली करते हैं। अभी उसके अंदर इंटेलिजेंस डालना है, ऑटोमेशन डालना है, डिजिटल डालना है और सिक्योरिटी सिस्टम डालना है, स्मार्ट ग्रिड करना है। सो वी हैव ए ग्रुप कॉल्ड स्मार्ट वर्ल्ड। 3 साल में उसका बिजनेस ये साल हुआ है 1100 करोड़, जो साल निकल गया वो। और हमारा ये स्ट्रेटजिक प्लान में उसका बिजनेस 5 गुना होगा। तो ईयर 21 में वो $1 बिलियन तक पहुंचने की हमारी आशा है। अभी ये बात ऐसी नहीं है कि ये बिजनेस 1 बिलियन हो जाए तो कंपनी का कुछ रिवॉल्यूशनरी प्रोग्रेस हो जाए, ये छोटी बात है। लेकिन उसका जो लिवरेजिंग होगा हमारे हर एक बिजनेस में, कि किधर हम हमारे ऑटोमेशन बढ़ा सकते हैं, रोबोटिक्स का एप्लीकेशन लाके क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, और हर एक बिजनेस का जो ओरिएंटेशन है किस तरह बदला जाए कि जिसे हम ग्लोबल बेंचमार्क में रह सके और हिंदुस्तान में हमेशा आगे रहे। और टेक्नोलॉजी सिर्फ एक हिस्सा नहीं बनेगी आपकी ग्रुप की, हर कंपनी के हर बिजनेस में एक बहुत ही ज़रूरी रोल अदा करेगी। करेक्ट। और उसका फ़ायदा होगा इन्फोटेक को, क्योंकि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा हर एक 82 कंपनीज में, जिधर L&T इन्फोटेक इन क्रिएटिंग स्मार्ट, क्रिएटिंग फिजिकल एंड डिजिटल टुगेदर, इन्फोटेक और भी कंपनियां हैं लाइक L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, वो दोनों का रोल बड़ा होगा। उनको जो नॉलेज मिलेगा, ये सब इम्प्लीमेंटेशन, दूसरा तो कोई कंपनी है मेरे को लगता नहीं है हिंदुस्तान में जिधर बैकयार्ड में 82 बिजनेस खड़े हैं, जिधर ये एप्लीकेबिलिटी आप कर सकते हैं। बाकी सब जगह आपको टैलेंट खरीदनी होगी, लेनी होगी। बिजनेसेस को जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, वो ही एक्सपीरियंस आप फिर बाकी बाजार और दुनिया में भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी लाइव फुल स्केल लेबोरेटरी होगी और है नई नई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन करने की। ये न्यूज़ टाइम टू टाइम आता रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हम एक पार्टनरशिप करने वाले हैं टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ, जिसको भी इसमें इंटरेस्ट है कि यही एक कॉन्ग्लोमरेट है हिंदुस्तान का जो स्ट्रेटेजिक प्लान, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बना सकता है कि जिससे उसके अंदर का क्लाइंट भी मिले और उसके साथ उसकी जो तरीके हैं एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन का, वो भी उनको करने को मिले। सो हमारा आखा जो मंतव्य है वो अलग से है, सोच अलग से है, और हम
फॉर्चुनेट है कि पार्ट ऑफ द ग्रुप होके हमें इसका जो इम्प्लीमेंटेशन और इम्पेटस करना है वो जल्दी से हो सकेगा। और इसीलिए हम एल&टी इन्फोटेक को न्यू एज टेक्नोलॉजी के अंदर प्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसमें व्हाट पीपल टॉक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तो होगा ही, लेकिन रियल लाइफ में उसको कैसे जल्द से जल्द वैल्यू क्रिएट अपना कस्टमर को कर सके, उसकी ध्यान बहुत डीप से हम रखेंगे, जो इतना सीधा सरल नहीं है सबके लिए। आजकल हर एक कस्टमर ऑटोमेशन से कॉस्ट कम करना चाहता है, 20%, 25%। टू क्रिएट दैट कॉम्पिटेंस ओवरनाइट, वेरी डिफिकल्ट। हमने क्या किया, हमने 30 आदमी ऑटोमेशन में से निकाला, इन्फोटेक में डाल दिया। ओवरनाइट एक सीड हमने बना दी। अब हम सोच रहे हैं कि हमारा पूरा ऑटोमेशन ग्रुप को हम देखें डिटेल में कि कितना वैल्यू क्रिएट करता है, कितना वैल्यू नहीं क्रिएट करता है। मेरे अंदाज से हम 200-250 आदमी और निकाल के इन्फोटेक में डालेंगे तो उसको हेड स्टार्ट मिल जाएगा। सो एल&टी इन्फोटेक बीइंग अ पार्ट ऑफ एल&टी हैज मल्टीपल एडवांटेजेस। आई हैव अ ग्रेट होप फॉर द फ्यूचर। और बात जो अधूरी रह गई मेरी अगली आपका ये क्वेश्चन के पहले की, कि जब अगस्त 2000, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं सोचने लगा कि अभी क्या किया जाए, तो मैंने सोचा कि चलो हम इन्फोटेक का बिजनेस करें। वो टाइम .com बर्स्ट हो गया था, Y2K चला गया था। सब लोग ने मुझे बोला तुम मूर्ख है, अभी क्यों चालू कर रहा है, अभी तो सब लोग का कंपनी बंद हो रहा है। तो हमने बोला हमें बिजनेस किधर करना है, हमें तो हमारी टैलेंट को स्टॉप करना है बाहर जाती हुई, उसको एक चांस देना है। एल&टी ग्रुप में वो सबको बहुत प्राइड है एल&टी का, लेकिन बाहर की दुनिया में जो प्रॉस्पेक्ट मिलते हैं वो हम दे नहीं सकते, क्योंकि एल&टी की बाकी पूरी कंपनियों को भी वही सैलरी और स्केल चाहिए। इसीलिए हमने नई कंपनी खोली, उधर सबको ट्रांसफ़र किया, इंटरनल आईटी को। फिर भी काम नहीं आया, क्योंकि सबको अमेरिका जाना था, कनाडा जाना था, बाहर काम करना था। इसलिए हमने मेरा जो खुद का कनेक्शन था वर्ल्ड में, उधर मैंने जाना शुरू किया और 3 मेजर अकाउंट वन आफ्टर द अदर मिल गया, 80 मिलियन इन 2 years। बाद में तो वन लेड टू अनदर। एंड जो चीज़ मैंने मन में सोची थी कि ये तो खाली टैलेंट बचाने की बात है, वो बचाने के लिए हमें एक्सपांड होना पड़ा। अभी ये सिचुएशन ये बन रही है नायक साहब, दैट जो टैलेंट आप बचाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी उसी टैलेंट को ख़त्म करने के लिए लग गई है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आप देखें, अगर आप कोडिंग देखें, कितनी सारे अलग काम हैं जो मशीन करने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए टैलेंट और लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपके ग्रुप के लिए भी काफ़ी बड़ा चैलेंज रहेगा कि इतने सारे लोगों को फिर नौकरियां कैसे बने। नहीं, एक बात तो ज़रूर है कि हर एक को अपना अपना ट्रांसफॉर्मेशन, रीओरिएंटेशन, नई स्किलें लर्न करनी पड़ेगी। वैसे तो जब आईटी ये जगत में आया अपने हमारी दुनिया में जी, तो सबने यही बात की थी कि सबका जॉब चला जाएगा, आईटी सब कुछ ऑटोमेट कर देगी। लेकिन मल्टीफोल्ड हायर जॉब्स वेर क्रिएटेड एंड इन फैक्ट इट वाज इन अ डिफरेंट फील्ड and quickly the education institution adopted to that. Quickly the people started learning, everybody said we want to go to IT, computer engineering and so on, and then the new world developed. Okay, अभी जो है वो ही होने वाला है, much more advanced technology, concurrent engineering, concurrent development of worldwide global connectivity, and उससे जो भी application करना है simultaneously fastest and a very high level of scale and speed, उसके अंदर थोड़ा बहुत जॉब तो कम होने वाला ही है। So everyone will have to be smart, or else redundancy will come, just as the redundancy comes even in present job. तो और लोगों को लगेगा कि कंपनियां तो बढ़ रही हैं लेकिन नौकरियां नहीं बढ़ रही, उससे
इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ेगा और कंज्यूमर बेस बढ़ाने में भी फ़र्क पड़ेगा। तो एक तरह से आपके सारे ग्रुप पर भी और पूरे जो भारत की जो इकोनॉमी है, इंडस्ट्री पर भी काफ़ी नेगेटिव असर पड़ सकता है। प्राइमा फेसी अगर आप देखते जाओ जी तो ये हो सकता है, लेकिन जितनी टैलेंट हिंदुस्तान में है जिसको हम बदल सकते हैं, उतनी टैलेंट वर्ल्ड में नहीं है। मैं सब जगह जाता हूँ और देखता हूँ कि पीपल आर नॉट एबल टू चेंज। पर आपने अपने ग्रुप में भी जिस लेवल का प्रोफेशनलाइजेशन रखा है, इट इज़ अ वर्ल्ड बेंचमार्क, इट इज़ एक्सेलेंट, क्योंकि यू आर अ प्रोफेशनली रन कंपनी ऑफ दिस साइज, जो बहुत कम है इस तरह से। एंटरप्रेन्योरियली प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, एंटरप्रेन्योरियली। लेकिन आगे स्थिति ये बन रही है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, रोज़गार नहीं बढ़ रहा, आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर हो सकती है, कंपनीज का प्रॉफिट बेटर होंगे, लेकिन जॉब्स नहीं बन रहे हैं। नायक साहब, इन योर एक्सपीरियंस, अब कंपनीज लाइक योर्स स्पेशली विच आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन टेक्नोलॉजी, अब क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कंपनी भी बढ़े, नौकरियां भी बढ़ें और इकोनॉमिक ग्रोथ भी आगे बढ़े? हमें वर्ल्ड का मार्केट शेयर बढ़ाना होगा। हमारा जो मार्केट शेयर है जी। इंडिया का इस फील्ड में, न्यू फील्ड जो आ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रहा है, वो इतना फास्ट सीखना पड़ेगा, इतना फास्ट कि दूसरी कंट्रीज़ के प्रोफेशनल अंदर आए उसके पहले हम मार्केट शेयर ले लें। अभी मैं 5 दिन यूरोप जाके आया, मैं करीबन 19 चेयरमैन को मिला हूँ, उसके साथ CIO की भी मिला। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास बहुत काम है लेकिन टैलेंट नहीं है। आप वो टैलेंट लेके आइए जल्दी ट्रेन करके, कि जैसे उनके जो स्किल हमें चाहिए ऑटोमेशन में, डिजिटल में, वो रिक्वायर्ड नंबर में मिले। आई बिलीव इन स्पीड एंड स्केल। कुछ भी करना है, टाइम तो बदलता ही रहेगा, टेक्नोलॉजी बदलती ही रहेगी, कल कुछ और आएगा। जो करना है स्केल में करो और स्पीड में करो, कि जिस तरह से आउटसाइड इंडिया अपना एक जो IT का प्रेजेंस फेल्ड हुआ है, तभी जो नई तरह की जो टेक्नोलॉजी आनी है उसका नंबर इतना फास्ट स्केल और स्पीड में करना है कि दूसरा कंट्री को ये मार्केट शेयर मिले उसके पहले हमें मिले। क्योंकि आप ब्रिज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो बड़े बड़े अब रोबोट्स करने लगेंगे, बड़े बड़े रोबोट्स करने लगेंगे, आपकी बड़ी बड़ी रोबोटिक मशीन आ जाएंगी। तो आई थिंक L&T को उस तरफ भी देखना पड़ेगा। नहीं, रोबोट्स तो नहीं आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, ऑटोमेशन जरूर आएगा, सेंसर्स जरूर आएगा, लेकिन ये सब में इतना वेरिएबल है। एक ग्राउंड इतना बड़ा है तो उसको काटना है रोड बनाने के पहले, तो रोबोट आके ऐसा ऊपर जाके ऐसा काट डालने वाला नहीं है नज़दीक का भविष्य में। सो हमें लगता है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट करना है जी, उसके अंदर स्मार्टनेस जरूर आएगी, उसका मशीन के अंदर ऑटोमेशन जरूर आएगा, कनेक्टिविटी एक दूसरे के साथ जरूर आएगी, लेकिन उसका भी रोल होगा और वो रोल इतना जल्दी चला नहीं जाने वाला है कि रिडंडेंसी आए काम में। द ओनली थिंग आई ऑलवेज से, द विनर्स आर दोज who have talent, who are willing to change fast and have speed of doing that and scale of being able to achieve that. If you have that, do you think 15-20 साल पहले किसी ने सोचा था कि हिंदुस्तान सारा वर्ल्ड में अपना एक छाप करके रख देगी IT में? लेकिन किया। क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट जितनी क्वांटिटी में चाहिए वो आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन निकाल रही थी। करेक्ट। पीपल आर विलिंग टू चेंज। मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के बदले वो IT स्पेशलिस्ट बन गए, कंप्यूटर इंजीनियर बन गए। अभी कुछ और बनना पड़ेगा, नई जो एप्लीकेशन आएगी उस हिसाब से, लेकिन एक रिसोर्स जो हिंदुस्तान ने खड़ा कर दिया उसकी वजह से आज वो इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान में है। तो मेरा आखिरी सवाल नायक साहब, टेक्नोलॉजी, L&T इन्फोटेक और आपकी एक और टेक्नोलॉजी कंपनी है और आपके 82 बिजनेसेस हैं, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी और आपके बिजनेसेस के बीच में किस तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा? अगले 5 सालों में, अगले 10 सालों में
ये जो कंपनीज हैं आपके ग्रुप के लिए और इंटरनली और एक्सटर्नली कितना महत्वपूर्ण रहेंगी? मैं आपको इन्फोटेक की बात करूंगा जी। I told you that the entire company has realized that we have to go digital, we have to become smart, we have to automate more. Redundancy of jobs will happen, but we have to train people and capture a large mass of people to be changing with time. करेक्ट। Now 10 साल की तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि ये टेक्नोलॉजी 3-4 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म हो जाती है। सो मैं इतना ही कहूँगा कि L&T इन्फोटेक को बहुत फायदा होने वाला है इन कंप्लीट the shift of the L&T group, because they are the one who will be the partner in implementation to And L&T the transformation. and with that entire experience they have a greater chance to change fast, speed fast, scale fast, so that they don't lose out in a marketplace. Naik sir, really appreciate your time. Thank you very much for being with us. Thank you very much.